मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्रु श्री जगद्गुरु मदात्मा शब्दात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरादिनादिक्षरूपरं देवतं गुरुपरं तृणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमेशं केवलं ज्ञानमृतं दन्दातीतं ज्ञानसरसं तस्मै शादिलशम् एकं नेतं विमलेशं सर्वोदेशाखिभूतं भावातीतं स्थितं सर्वत्वां नमामि सर्वत्वां नमामि सर्वत्वां नमामि। जय गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निराकार निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्मं नमामि हम। श्री श्री ठाकुर को चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। माँ बड़ माँ को चरण रे मध्य कोटि कोटि प्रणाम। दादा को चरण रे एवं समस्त चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं सबु माँ माननकु मोर जय गुरु एवं स्नेह भरारा। आज मातृ सम्मिलन रे सबु छोट छोट झियो माने माँ माने आज सम्मिलित होई मातृ सम्मिलनी आयोजन करछन्ती एवं समस्त को मोर अशेष अशेष स्नेह एवं रा। आमर भूमि गरी असी माता स्वर्गात उच्चतर पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी असी। तेणु ए मातृ सम्मिलन रे स्वर्ग भूमि ठारू गरी असी होचंती माँ आउ स्वर्ग ठारू पिता एवं जन्मभूमि आउ जननी ए दी जन होचंती स्वर्ग ठारू मध्य श्रेष्ठ। आज आमर गुरु वंदना गान करिवे दीपिका माँ सुंदरगढ़ मु तांको अनुरोध करछि से वर्तमान माँ हमर सुंदरगढ़ उपस्थित अछंती ना माँ। खुड़ी खुड़ी गुरु वंदना सरी गलानी सत्यानुसरण पाठ हुआ। सत्यानुसरण ग्रंथ आमर पाठ करिवे जानदारू सुवर्णा माँ। सुवर्णा माँ उपस्थित अछन ना माँ। आज्ञा माँ जय गुरु। हाँ जय गुरु माँ। हाँ वर्तमान सत्यानुसरण पाठ कर। आज्ञा आज्ञा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। सर्वप्रथमे आम्भମାନଙ୍କୁ दुर्बलता विरुद्धରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ। ବୀର ହେବାକୁ ହେବ। ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ବଳତା। ତଡ଼ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଏହି ରକ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଅବସାଦ ଉତ୍ପାଦକ ଭାମ୍ପାୟାରକୁ। ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ସାହସୀ। ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଶକ୍ତିର ତନୟ। ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଗେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ତେବେ ଜାଣିଯିବ ତୁମର ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମାଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମାଁ ଆମର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ପାଠ କରିବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ମାଁ। ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ମାଁ जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर चंद्र मुख निसृत नारी नीति ग्रंथ पाठ। तुमे मनीषर माँ परि आपणार हेबाकु ताहा कथारे चेष्टा कर ताहा कथारे सेबारे ओ भरोसारे किंतु मिसिबारे नुहे। देखिबो केते ही तुमर होई जाउछि। जय गुरु।
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ମା କୁନି ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦରଟି ଭାଷାରେ ଦରଟି ଶବ୍ଦରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣାଗଲା କାନକୁ। ଆଉ ମୋ ମାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ନାରୀ ନୀତିର, ମାନେ ତୁମେ ମିଶିବାରେ ବା ଏ କରିବାରେ ନାରୀର ଗୋଟିଏ ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେମିତି ରକ୍ଷା କରିକି ନାରୀଟିଏ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସବୁ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଗଢି ଉଠିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଧନା ଆଦି ରଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ? ମା ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରପାଠ ପୂଜନୀୟ ସାଧନା ଦି ରଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ଇଷ୍ଟ, ମୋର ଆଦର୍ଶ, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ତୁମର। ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ମୋ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବ୍ରତ ହେଉ। ନାରୀର ନୀତି ତୁମେ କହିଛ, ତୁମେ କଲ୍ୟାଣୀ ରୂପେ, ସତୀ ରୂପେ, ନାରୀ ରୂପେ ମତେ ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ। ଶପଥ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ। ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଉଠ। ପୁଲକ, ଜୀବନ, ଯଶ ଓ ମହାନ ସମ୍ବେଗରେ। ନାରୀ ମୁଁ, ଅମୃତର ଅଧିକାରିଣୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେପରି ଏହି ଅଶେଷ ଅମୃତ ନେଇ ନିପୀଡ଼ିତ, ବ୍ୟଥିତ, କର୍ମଠ, ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣନର ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଣନ ସ୍ନାନରେ ସ୍ନାତ କରି ତୁମରି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଦେଇପାରେ। ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାରିଣୀ କରିଛ। ମୁଁ ମୋର ସକଳ ଭଲ ପାଇବା ନିଃଶେଷିତ କରିଦେଇ ତୁମକୁ ସ୍ୱରେ ଓଜଦୀପ୍ତ ଜୀବନମୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଏହି ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେପରି ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେ ହିଁ ମୋର ଚଳନରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୁମର ମହାନ ଅଭିଯାନକୁ ଅବିରୋଧ କରିଦେଇପାରେ। ମୋର ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧିର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବହୁ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ତୁମକୁ ପାଇଛୁ ଆମେ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ, କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛୁ ତୁମରି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେ ତୁମକୁ କରିଛି ମୂର୍ତ୍ତ। ଅରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିଛି ମଣିଷ ଭଗବାନ। ଦୟାଳ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟତମ। ଆଜି ଏହି ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ତୁମରି ଚରଣରେ କେବଳ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର, ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ସୁଖୀ ହୁଅ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଅପୂର୍ବ ସୌରଭ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ସପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆମମାନଙ୍କର ତୁମରି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁକୂଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଓଗୋ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ପରି ପ୍ରିୟ ଆଉ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ, ପ୍ରତିଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ମୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତର ହୁଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟାଲ, ମୁଁ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବି ନ ଭୁଲେ ତୁମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ମୋର ଅନୁକୂଳ, ତୁମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାସୀର ତୁମର ଜୀବନ ଚିରବର୍ଦ୍ଧନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଠୁ। ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ମୋ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ମୋର ନାରୀତ୍ୱ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ସାର୍ଥକ ହେଉ ତୁମର ନାରୀର ନୀତି ପ୍ରତିପାଳନରେ। ଓଗୋ ପ୍ରିୟ ରାଜାଧିରାଜ ସମ୍ରାଟ, ତୁମେ ଥାଅ, ତୁମେ ବଞ୍ଚ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠୁ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସାଧନା ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚାଳି ଗୀତ ବୋଲିବେ ଯୋଡାରୁ ଆମର ନନ୍ଦିତା ମା।
ନନ୍ଦିତା ମା ଆଜ୍ଞା ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। তোরা শোনের ভাই বলে যাই বাঞ্ছা বাড়ার পর যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলের রথ শোনো কথা শোনো পুণ্য কথা তার বারতা কহিবি মরণ যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন মানুষ এলো সংসার মানুষ মহাপুরুষ পুরায় পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায় রামহিমাপুরে পদ্মাতীরে জনমরায় চক্রবর্তী অতি সদাশয় মাতা মনমোহিনী মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি করে গৃহে আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল তারা রূপ দেখে ভাব দেখে কহে না যায় ভুবন মোহন রূপে সবারে বোলায় শোনো তার মহিমা মাধুরিমা নাহি পারাবার নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার শোনো ধর্মের কথা তার বারতা অতি চমৎকার বাঞ্ছা বাড়ার চলিতে ধর্ম করো সার করো খাদ্য বিচার সদাচার ঋষি বাক্য পালো প্রীতি বেশে সেবা করে ইষ্টপথে চলো এত আর্য নীতি ধর্মনীতি হিংসা দেশা ছাড়ো হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো পালো বর্ণাশ্রম করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো যজন যাজন ইষ্ট প্রীতি যথাবিধি করো পালো সুস্থয়ানী মহান বাণী পালন করা ভাই এই জগতে নামের সম ঔষধে আর নাই এত বাঞ্ছার পথ ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই বিধিমতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই গড় আর্য সমাজ বারো পুষ্টি রাখো ঊর্ধ্ব ঈশায় রসুন কৃষ্ণ সমান চোখে দেখো তারাই পূর্বতন বর্তমান ঠাকুর অনুকূল তার বিধি মেরে চলো কাটাও মনের ভুল পাবে মহাশান্তি যাবে শান্তি পাবে সত্য যুগ কলবাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ ভাইরে ভয় নাই টান ভাই অনুকূলের রথ ধর্ম নষ্ট নাই পাবে বাঁচার পথ এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার অধম সন্তান ভজে পদ যুগলতার জয় পুরুষোত্তম রসুনাম বুদ্ধ যিশু নাম শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘনশ্যাম বন্দে পুরুষোত্তমম ବାহ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଞ୍ଚାଳି ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଆମର ନନ୍ଦିତା ମା ଯୋଡାରୁ। ଆଉ ଏ ଖାଲି ପାଞ୍ଚାଳି ଗୀତ ନୁହେଁ, ଏ ପାଞ୍ଚାଳି ଗୀତରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ଧର୍ମ ସବୁ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଛୋଟିଆ ଇଏରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିୟମ ଖୁବ ଛୋଟ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉ କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନନ୍ଦିତା ମା ପାଠ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ କଳ୍ପନା ମା ରାଉରକେଲାରୁ। କଳ୍ପନା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ହଁ ଏବେ ଭଜନ ଗାନ କରନ୍ତୁ। তুমি গো মমতা তুমি মোর মাতা তুমি গড়ি
जन्म किंचन तुम्हारी गर्भे अमृत संतान लभिछि जन्म किंचन करुणार मारि माई गो तुमे करुणार मारि माई गो तुमे परिबनि तुम्हारी आशीष तुम्हें गवावता तुम्हारी परसे अमांधकार निमिष मध्य कोई जाए दूर तुम्हारी परसे अमांधकार निमिष मध्य कोई जाए दूर कृपामयी मागो करुणा करो कृपामयी मागो करुणा करो सबर रोगारी तुम्हारी आशीष भरा खुशियाँ तुम्हें गवावता सहस्य श्यामला धरित्रीर रूप तुम्हें गढ़िछ रूप सहस्य श्यामला धरित्रीर रूप तुम्हें गढ़िछ रूप संतर मुक्ति मारिया चासा संतर मुक्ति मारिया चासा कभी छुबो माता डोरा तुम्हारी आशीष भरा खुशियाँ तुम्हें गवावता आजी तो संताने को आशीष गुंजी जाऊ तारा मनर परुष आजी तो संताने को आशीष गुंजी जाऊ तारा मनर परुष अजाड़ी देछि समुद्र पारे अजाड़ी देछि समुद्र पारे स्नेहमयी स्नेह भरो तुम्हारी आशीष भरा खुशियाँ तुम्हें गवावता तुम्हें मोरा माता तुम्हें गढ़िछ संसार तुम्हारी आशीष भरा खुशियाँ जय गुरु ବାଃ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ରାଉରକେଲାରୁ କଳ୍ପନା ମା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରର ଝଙ୍କାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲ କରି ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଜି ଆମର ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେପରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ ସେ ଭଜନର ଭାବାର୍ଥ ଥିଲା ଗୁରୁ ଓ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମର ଦୂର କରି ସେ ଦୀପର ଆଲୋକ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜି খুব সুন্দর ভাবে গান কলে কল্পনা মা, বহু সুন্দর মা। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ
सुनो ना माँ सुदूर कालकाटारू सुनो ना माँ। जय गुरु सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए, भजन गान कीजिए। सुनो ना माँ। সকলকে আমার জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु। জীবন নাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। জীবন নাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। উদার কটুকাল কাটিয়ে দিবি আর কটুকাল কাটিয়ে দিবি এমন ঘুমগরে আর কটুকাল কাটিয়ে দিবি এমন ঘুমগরে। দিবনাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। প্রবৃত্তির আগুন তুতি ধর দয়ালে চরণ দুটি। প্রবৃত্তির আগুন তুতি ধর দয়ালে চরণ দুটি। তারি সেবায় ওঠ না ফুটি সাধু কোথায় ওরে। তারি সেবায় ওঠ না ফুটি সাধু কোথায় ওরে। জীবননাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। জীবননাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। ওরে তালে সেবায় ওঠ না ফুটি সাধু কোথায় ওরে। ওরে ওরে তালে সেবায় ওঠ না ফুটি সাধু কোথায় ওরে। তালে সেবায় ওঠ না ফুটি সাধু কোথায় ওরে। ওরে তালে সেবায় ওঠ না ফুটি সাধু কোথায় ওরে। ওরে তালে সেবায় ওঠ না ফুটি সাধু কোথায় ওরে। ওরে তালে সেবায় ওঠ না ফুটি সাধু কোথায় ওরে। জীবননাথ আজ এসেছেন তোদের দুয়ারে। উঠুক না ঝড় জাগুক তুফান চল ছুটে চল। উঠুক না ঝড় জাগুক তুফান চল ছুটে চল। তোদের বৃত্তি ভেদি সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। বৃত্তি ভেদি সেবা সাধন মুক্তি দেবে ওরে। লাগলে লাগ লাগ না চড়া সকল বাধায় বাঁধন ওরা। লাগলে লাগ লাগ না চড়া কোল বাধায় বাঁধন ওরা। আরে পাওয়া মনতে তোরা প্রগতিশীল রে। তারে পাওয়ার মনতে তোরা গতিশীল রে। ওরে তারে পাওয়ার মনতে তোরা গতিশীল রে। ওরে তারে পাওয়ার মনতে তোরা গতিশীল রে। তারে পাওয়ার মনতে তোরা গতিশীল রে।
দিছিলো জীবনা থইয়া দিছিছিন তুজি দুয়ারে জীবনা থইয়া দিছিছিন তুজি দুয়ারে জীবনা থইয়া দিছিছিন তুজি দুয়ারে। Thank you. जय गुरु सुनैना माँ। बहुत अच्छा था आपका भजन। बहुत मतलब बहुत स्वीट था। आप इतने मतलब कम उम्र में भी इतने सुंदर आप गा पा रही है। मैं ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप आजीवन ऐसे ठाकुर जी के चरण में भजन अर्पण करती रहें। खुड़ी खुड़ी आपण लाइन रे अछंती। यहाँ पर तृतीय भजन निवेदन करबा पई ମୁଁ କହିଲି ଭଜନ ଶୁଣା ଯାଉ ନଥିଲା କି ମୋର ଭଏସ ଟା? आज्ञा आसु नथला। ହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ଏଇ ଭୁଲରେ ବୋଧେ କେମିତି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏପଟେ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭୁଲରେ ହାତ ବାଜି ଯାଇଥିବ। ଆରେ ସରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାଳି ମା ବରମପୁରରୁ ଦୀପାଳି ମା ବରମପୁରରୁ ତୃତୀୟ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଦୀପାଳି ମା। ଆଜ୍ଞା ମା ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କର। ଆଜ୍ଞା। শাশ্বত চির তুমি বিশ্বে ধারার প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমারি চরণে প্রভু প্রণতি জানাই তোমারি চরণে প্রভু প্রণতি জানাই প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায় শাশ্বত চির তুমি বিশ্বে ধারার প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায় শাশ্বত চির তুমি বিশ্বে ধারার প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায় তোমারি চরণে প্রভু প্রণতি জানাই তোমারি চরণে প্রভু প্রণতি জানাই নানা খাইব। दीपाली अनम्यूट करो तुम्हारे म्यूट ही है। জগতে সার তুমি বিশ্বের প্রাণ লীলা তোমার অনুপম ভগবান জগতে সার তুমি বিশ্বের প্রাণ লীলা তোমার অনুপম ভগবান রবি সপি দেওয়াল তব মহিমায় রবি সপি দেওয়াল তব মহিমায় প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায় শাশ্বত চির তুমি বিশ্বে ধারা প্রণাম তোমায় প্রভু
बहुत सुंदर दीपाली माँ आम दीपाली माँ ब्रह्मपुर खूब सुंदर भक्ति भरा भजन गान करके समस्त को मंत्रमुग्ध करिसेंती आउ सुंदर कंठरे मध्य गान कले। वर्तमान आमर जोड़ारू कोरस गान करिवे नंदिता माँ। नंदिता माँ आज्ञा माँ जरूर। जय गुरु माँ। पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई सतनामहि केवल सार सतनामरे हुआ विभोर सतनामहि केवल सार सतनामरे हुआ विभोर पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई सतनामहि केवल सार सतनामहि सतनामहि केवल सार सतनामहि पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई प्रेममय सद्गुरु सिजिया चरन्ति धर्मवाणी प्रेममय सद्गुरु सिजिया चरन्ति धर्मवाणी माया जाले छन्दी होई कह काहीं तू पारुल जानी माया जाले छन्दी होई कह काहीं तू पारुल जानी संसारी न होई मोरा मनोरा धराव भरा संसारी न होई मोरा मनोरा धराव भरा सुस्ती नभी सदाम पारा सतनामरे सुस्ती नभी सदाम पारा सतनामरे पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई नामे होई मतवाला सिही नामिंकु करो मोराना नामे होई मतवाला सिही नामिंकु करो मोराना नामर सहारानी तोर जीवनकु करो धन्य नामर सहारानी तोर जीवनकु करो धन्य नाम बिना नाही गति नामे मिले सुख शांति नाम बिना नाही गति नामे मिले सुख शांति नामे बंधरे जीवन सतनामरे पुरो नाम बंधरे पुरो सतनामरे पुरो पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई सतनामहि केवल सतनामरे सतनामहि केवल सार सतनामरे पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई पुरुषोत्तमको पाई इष्टपथि जाऊ धाई। जय गुरु बा बहुत सुंदर जोड़ारू आमर नंदिता माँ जो भक्ति धारार जो आमर कोरस गान कले से कोरस रो
ताले ताले से आमको प्रवाहमान करिनेले भक्तिर मार्ग रे माने समस्ते एमती भक्ति रे जेपरी मतवाल होई उठंतु नंदिता माँ मोर आशा एमती बहुत भावरे कीर्तन भजन गान करी समस्त को जीवन सारा एमती मतवाल करूथा वर्तमान कीर्तन गान करिवे रायरंगपुर रुचिदा माँ रुचिदा रुचिदा माँ हाँ जय गुरु आगे हाँ रे माँ उछड़ा त्रिभुवन उछड़ा त्रिभुवन उछड़ा त्रिभुवन प्रवाहित आजी की महानंद रे प्रवाहित आजी की महानंद रे उछड़ा त्रिभुवन 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 मन भरे भक्त प्राण जाग जाग रे भक्त प्राण जाग जाग रे प्रवाहित आजी की महानंद रे प्रवाहित आजी की महानंद रे हरे सागरे कर नाही देरी ताकु शक्ति दया बाहु प्रसारी हरे सागरे कर नाही देरी ताकु शक्ति दया बाहु प्रसारी हरे करते कम 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 हरे करते कम
ମୋ ପିତାଙ୍କ जय गुरु जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद रे माँ। आउ रुचिदा माँ आज समस्त त्रिभुवन खाली उछल हो जाइनी आज समस्तଙ୍କର मन प्राण ସବୁ ए जो कीर्तन ताले ताले चलेगला। ये होची हरि भाईଙ୍କର तृतीय पीढ़ी जे कि आमे समस्ते शुणी आसे आउ कीर्तन खूब सुंदर भाबरे तांकर तृतीय पीढ़ी माने प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी मु तीनोटी पीढ़ीर भजन कीर्तन माने शुणी आछी। खूब सुंदर भाबरे तांकर परिवारटा सारा भजन कीर्तन करि परचंती आउ खूब समस्तଙ୍କ मनमुग्ध करि परचंती। एते सुंदर भाबरे गायथेरु रुचिदा को पुणी आउथरे मोर धन्यवाद। आउ मारे तुमे एमती समस्त को भजन बोली समस्त को मंत्रमुग्ध करि दळ। आउ आज हमर मातृ सम्मेलनी ए शेषरे जो हमर जो भजन गान करा गला प्रार्थना भजन ए रे कीर्तन की गान करा गला से कीर्तन खूब सुंदर हेतिला। वर्तमान हमर जाजन करिवे सुंदरगढ़ शुभश्री माँ। एंता पूर्व मु गोटे कथा कहया भी चाहे ए हमर जो माँ माने छोट छोट छुआ माने आज सब करचंदी जे माने करचंदी शिक्षा समस्ते तो शिक्षा लाभ करचंदी। से जो शिक्षा लाभ करचंदी से शिक्षाटा के संगीत शिक्षा करूची के चित्र शिक्षा करूची के गीत शिक्षा करूची सब प्रकार शिक्षा करचंदी। से किंतु प्रकृत रे से शिक्षार मूल भित्ति कोन आउ आमे जो शिक्षा लाभ करचे आमे तार शेष पर्यंत आमे केमिति जीवा आउ प्रकृत भाव रे तार शिक्षा लाभ करिया खाली ऊपर ठाउरिया नै जेमती हमर सरफरी फरफर एते ऊपर जेमती हमर दणकिरी माछ से कोन करे फरफर होथाय किंतु गभीर जल रे बड़ बड़ माछ माने से मानकर पूरा गभीर भाव रे से माने ज्ञानर गभीरता भितरे थांती। से मानकु सेमानकर ज्ञान पाइबा पई अन्य मानकु ही ये करिया को पड़े। ठीक से भली भाव रे कष्ट करिया को पड़े। आउ सरफरी को कोन करा जाय माने गोटे केउट आराम रे धरि पारे
किंतु जो माछ गभीर रे थाए ताकू धरिया पई गोटे कैवर्त को बहुत कष्ट करिया को पड़े। ठीक से भली भाबरे ज्ञान गोटे एमिति जिंस जहाँ को आमे आहरण करिया पई हमकु बहुत बार कष्ट करिया को पड़ी थाए। तेणु कष्ट साध्य हेले मध्य साधना सिद्ध हेले मध्य से ज्ञान आम पई बहुत उपकारी होई थाए। आ वर्तमान हमर सुंदरगढ़ शुभश्री माँ जय गुरु माँ। जय गुरु आपण जाजन परिवेशन करंतु। आज्ञा माँ। जय परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री बड़मा योगाचार्य श्री श्री बड़दा आचार्य देव श्री श्री दादाଙ୍କ चरणरे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आज ये ऑनलाइन मातृ सम्मेलन रे जड़ित थिबा मोर माँ माने एवं दादा माननको मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे एवं तत्सहित सत्संग को भल पाउथिबा मोर साधु सज्जन मंडली एवं छोट बड़ भाई भौणी माननको मोर यथायोग्य स्थान रे राजय गुरु निवेदन करे। आज ये ऑनलाइन सत्संग रे मु आज जॉइन करिबार सुजोग पाइथिबार आज मु धन्य। आज सतरे ए सत्संग रे जो छोट छोट कुनी कुनी पिला माने आज जो दी जण परिवेशन कले सतरे ठाकुर आमको सेतिके आशीर्वाद देइचंती बोली आमे आज तांको सम्मुख रे निजको उपस्थापना करि पारुछे। तेणु तांकर आशीर्वाद आमर जीवनर आरंभ रही एवं जीवनर परे मध्य रहिथिबो। मु तो ठाकुर को विषय कहिबार विशेष अभिज्ञता किछि लाभ करेनी तथापि ठाकुरଙ୍କ विषय कहिबी आ किछि कहिबी। आमे आज जो मातृ सम्मेलन करूछंती से मातृ कोन मातृ शब्दर अर्थ हैला माँ। माँ अर्थ माटी आ अर्थ आकाश जे असीम। तेणु सबुरी मूलरे हेउची नारी। कहा जाए नरयति ज स नारी जे लालन पालन करे एवं धारण करे से ही नारी। नारी बिना ए सृष्टि असंभव। तेणु तार मर्यादा सबुठारु ऊपर दिया है जाता है। कहा जाए नारी ठारु जन्मे जाति। तेणु श्री श्री ठाकुर नारी मानू को अधिक गुरुत्व देइचंती कारण से चाहिचंती गोटे सुंदर श्रृंखलित परिवार। कारण परिवार को नहीं समाज समाज को नहीं राष्ट्र। तेणु गोटे परिवार रे प्रत्येक किभली भाव श्रृंखलित हेबे सेथिपई से देई गले आचार्य परंपरा जहां को देखि आमे सिखि परिबा जे गोटे आदर्श जीवन कोन आदर्श परिवार कोन एवं ए आचार्य परंपराटा काहाटो सृष्टि हेछि। से आचार्य परंपरा को सृष्टि करिचंदी स्वयं से जीवंत आदर्श पुरुषोत्तम आ से पुरुषोत्तम को आमे आज पाइछे। तेणु सेही पुरुषोत्तम को स्वामी रूप रे पाई तांकरी हाथ धरी संसार को आसीथिले श्री श्री बड़मा एवं तांकर आचरण रे माने से देखै दैचंती कि किभली गोटे भल झियो हबा किभली गोटे भल बोहू हबा किभली गोटे भल स्त्री हेई परिबा किभली गोटे माँ भल माटे हेई परिबा। तेणु कले माने ए सब संसार रे नारीर इम्पोर्टेंस को लक्ष्य करी श्री श्री ठाकुर तांकर नारीर नीतिर प्रथम पृष्ठ रे लिखिले झियो मोर तुमर सेवा तुमर चालिबा तुमर चिंता तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटाए भावर सृष्टि करे जेउथरे सेमाने अवनत मस्तकरे नतजानु होई सश्रम्भ में भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुअंती बुद्ध हुअंती तृप्त हुअंती कृतार्थ हुअंती तेबे ही तुमे नारी तेबे ही तुमे सती। तेणु ठाकुर को इच्छार नारीटी हेबाकु हेले प्रथमतः निजको सुकेन्द्रिक करबाकु हबो। सुकेन्द्रिक हेबा द्वारा केवल तांकरी कथा ही हमको अनुसरण करबाकू इच्छा हेबो। तेबे जाई आमे आमर चालीचलन रे बा कहिबारे बा बसिबारे सबु किछि आमे श्रृंखलित भाव करि परिबा। तेबे एई सबु को श्रृंखलित करबा पई नारीर शिक्षा जेमिति माँ मो पूर्वर कहतले कि गोटे नारीर शिक्षा होछि सबुठारु बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु ठाकुर पुणी थरे कहिले नारी माननकु शिक्षित करबाकू हेले एपरि शिक्षा देबा प्रयोजन जेउथिरे सेमाने वैशिष्ट्य रे वर्धनशील उन्नति प्रवण और अव्याहत हुअंती तेबे जाई से शिक्षा जीवन और समाज को धारण
रक्षण और उन्नयन सार्थक करिपारे। किंतु आजिका समाज रे आमे जति देखिबा शिक्षार मूल्य किछि नाही बा जो कुहा जाए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन सेगुडा किछि देखा जाउनी। सेगुड़िका क्रमश माने कमी कमी की जाउची। आमे समस्त शिक्षा कहले बुझुचु कि माने केवल गोटाए पर गोटाए डिग्री हासिल करबा बा सर्टिफिकेट को हासिल करिक रखिदेबा। किंतु पाठ आमे सिना पाठ पढ़ी दउचे, पाठ साठ पढ़ी आमे हुए तो बहुत बड़ पदवी पाई परिबा, किंतु गोटे भल मनीष हेबार जो कौशल सेटा आमे कोठु शिखिबा। तेनु पई जणे जीवंत आदर्श लोड़ा, तांकु धरिले ही आमे जानि परिबा जीवन रे भल केउटा मंद केउटा, आउ कौन किपरि कले आमे गोटे सुष्टु सुंदर जीवनटे लाभ करि परिबा। ए कली जुगरे देखा जाए बहुत प्रकार व्यभिचार आपण माने आजकल देखि पारुथिबे, माने सकाळ पाहिले विभिन्न प्रकार घटना सब सुनिबा को मिलुची। ताहले ए जो घटना गुडी को घटुची से तो कोडु उपरु आसीनी, सेगुरा प्रतिदिन सृष्टि होउची। तो ए जो व्यभिचार गुडी को जो सृष्टि होउची तार कारणटा कोन? तार प्रधान कारण होउची माने आजिका सोसाइटी टा पूरा संपूर्ण भाबरे माने विध्वस्त हो जाइछि बा कलुषित हो जाइछि। कुआ जाए कि आमे जेमति जानुछु कि केतोटी व्यक्ति को नै गोटे परिवार, परिवार को नै समाज और समाज को नै राष्ट्र गठित हुए, किंतु सही व्यक्ति आज श्रृंखलित नाही, से परिवार आज श्रृंखलित नाही। तेणु जति परिवार व्यक्ति श्रृंखलित नाहंती तेबे समाजटा किभली श्रृंखलित हबो बा राष्ट्र किभली श्रृंखलित हेबो। तेबे एही जो श्रृंखलित आमे हेई पारुने, तो तार भी गोटे मूल कारण होउची। तार मूल कारण होला कोन ना धर्मर अवमानना। आमे साधारणतः धर्म कहले आमे बुझू पूजा पाठ उपासना बा विभिन्न प्रकार जे जहा माने भाभी पारला बा ताकू से निज इच्छा रे से धर्मर माने बुझे, किंतु ठाकुर धर्मर डेफिनेशन बहुत सिंपली दे देइचंती। धर्म होची ताहा जहा मनीषर बंचिबा पढ़िबा ऊपर निर्भर करे। आमे जानिचु कि भगवान को सृष्टि रे सबुठु श्रेष्ठ क्रिएशन होची नारी, किंतु आज सही नारी निजे निजर ही मर्यादा हरैची। ता भितरे जो टिकक जो दायित्वबोध थाए से दायित्वबोध ज्ञानटी आउ ता पाखरे नाही। तेणु जो कुहा जाए कि टुडे द कॉमन सेंस बिकम द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द वर्ल्ड। माने जो कॉमन सेंस गोटे झियो भितरे रहिबा कथा, से झियो भितरे से जो कॉमन सेंस टा आउ नाही। माने आजिर नारी केवल निजको ही भल पाउची, से किभली भाबरे निजे भलरे रहिबो, निजे सुंदर हेकी रहिबो, एई प्रति ही से ध्यान देउची। किंतु से तार कर्तव्य को भूली जाउची। तार झियो हिसाब रे बा गोटे बहु हिसाब रे बा गोटे माँ हिसाब रे बा गोटे स्त्री हिसाब रे तार कर्तव्य कौन, से कौन पाई ये संसार को आसीची सेटा से भूली जाए। केवल से केमिति निजे भलरे रहिबो सेई कथा ही प्रथमे से चिंता करूची। आउ ए जो सब चिंता करूची यार कारण होला कि से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करूची। काहे ना हमर इंडियन कल्चर को जति आमे देखिबा, माने पूर्व पुरुषगण बा मुनि ऋषि काल को जति आमे देखिबा, सेते बेले सती अनुसया माँ सीता केते जन माने विभिन्न प्रकार दृष्टांत दे जाइचंती, किंतु आजिर नारी से सब को माने पूरा पूरी भूली जाइछि। आ से सब को जति एबे उपस्थापना करा जाए तेबे से सब को से माने कहउचंती कि ओल्ड फैशन। जति गोटे माने आजिकली एमिति परिस्थिति सृष्टि हो गलानी, गोटे विवाहित नारी जति साड़ी पिंधुची, साड़ीटे पिंधिया जति ताको कुहा जाउची, से कहउची एगुरा सब ओल्ड ट्रेडिशन, आमे मॉडर्न, आमे जति कि मॉडर्न हे परिबु। आजिकली गोटे धारणा हे गलानी कि बाहागर पर जति गोटे बहुटे जीन्स पिंधुची कि माने सालवार पिंधुची, माने से माने निजको निजे माने देखेबा को चाहे कि मो ससुर घर एते फ्रीडम अछि कि मु बाहागर पर एते फ्रीडम पाइछि, किंतु से बुझी पारे ना तार मर्यादाटा कोन। सेइति पाही आज ए समाज रे विभिन्न प्रकार सब व्यभिचार घटी चलीछि। तेबे एही नारीर विकृति पाई माने मूल दायी हैला शिक्षा पद्धति। तेनु ठाकुर कहिजंती कि नारी मानू एभली भावे शिक्षा देवा कथा कि जेमिति तार वैशिष्ट वर्धनशील हेबा कथा। तापरे से वर्धनशील तार वैशिष्ट हेले जाय कि तार शिक्षा बा जीवन आ समाज को से धारण रखी पारिबो। तेणु आमे माने प्रत्येक को प्रथमे निज को देखिबा को हेबो, कारण निजे अनुशीलन कले जाय आमे जानि परिबा आमे किभली बा केउठी
से जो किंतु बा जो नारीत्व सेटा को आमे लूज करूचे। तेणु ठाकुर कहते तुमे जति ठीक हुआ तुम देखा देखी 1000 लोक ठीक हो जिवे। ठाकुर आमको दीटा जिनस दे दे चाहिए, गोटे है सत्यानुसरण आ गोटे हूँ नारीर नीति। से नारीर नीति को आमे सबू न पाइले किछिटा जति आम जीवन रे आमे लगे परिबा तेबे आमे आम जीवन टाको सार्थक करि परिबा। तेणु सेही जो सब नारीर नीतिर माने तीर्थ स्वरूप होउचंती श्री श्री बड़मा। श्री श्री बड़मांकर प्रत्येकटी गुण प्रत्येकटी लक्षण को देखिकी श्री श्री ठाकुर ए नारीर नीति को माने रचना करिसंती। काइना बड़मांक पागले सबु नारीर गोटे की जो अष्ट वैशिष्ट्य थिला से वैशिष्ट्य गुड़िक माने बड़मांक पाखरे देखिबा को मिले। पुणी ठाकुर कहते आमे चाहे शुद्ध आत्मा माने प्रथमतः नारीर मानसिक शुद्धता तार जीवन उपर पर्यवेसित। जेहेतु आमे पुरुषोत्तम को धरिजे तेणु तांकर आचार्य परंपरा को आमे समस्ते अनुशीलन करबा उचित। तेणु संपूर्ण नारीटीए हेबार उपाय कौन बा तार कौन कले आमे गोटे संपूर्ण नारी हे परिबा तार उपाय हैला आमे सेही ठाकुर को प्रदत्त अष्ट वैशिष्ट्य को आमे फॉलो करबा। से अष्ट वैशिष्ट्य कौन ना निष्ठा धर्म शुश्रूषा सेवा साहाय्य संरक्षण और सुप्रयोजन। गोटे झियो जति तार बोध अवस्था यही सब वैशिष्ट्य को अनुकरण करि पारे तेबे भविष्य रे से जने सर्वशक्तिमय सर्वगुण संपूर्ण नारीटीए होई परिबो एथिरे संदेह नाही। तेणु आमे आमे एबे मो कथा कहूची मु एबे मोर युवती अवस्था अच्छी। तेणु मु ठाकुर को छोट बेलू धरिकी आसी। तेणु ठाकुर मते जो परंपरा शिखाई देइचंती जो आचार्य परंपरा भितरे मु निजको शामिल करि परिछि जो टिकिया भी शिखिछि से परंपरा को आमे निज भितरे जेमिति माने यूटिलाइज करूचे आमे जति से भली ठीक ठाक हे परिबा तबे आमको देखि मध्य आम पाखापाखी लोक मध्य सेमिति निजको सजाड़िबा पई चेष्टा करिवे। तेणु ठाकुर को ग्रहण करी आमे आज निजको टिके बा कोठी श्रृंखलित आमे करि परिछे। ए जो पैंडेमिक सिचुएशन रे आमे माने फेस टू फेस बसी सत्संग बा मातृ सम्मेलन करि न पारले भी आमे ए जो ऑनलाइन रे ठाकुर कर आदर्श को आमे जो विश्व दरबार रे उपस्थापना करि परिछंती सेटा ही ठाकुर कर इच्छा थिला कि तांकर सपना सबुआडे प्रचारित होई पारु। तांकर ये जो आचार्य परंपरा बा आदर्श सबुरी भितरे दंडायमान हो आउ जो ठाकुर जो चाहिए कि मनीष परी मनीषटे होई उठ सेटा आमे आज हेई पारिचंती आउ जो आगो को मध्य हेबा आउ आमे चाहिबा गोटे दीक्षित हिसाब रे कि किभली आमे आम पड़ापड़ोशी को सब श्रृंखलित करि परिबा। काहेकि ना आम ठारू जति स्टार्ट हबो ताले आमठू एमती स्टार्ट हेई कि जाई कि हमर समाज बा राष्ट्र गोटे श्रृंखलित हेई परिबो। जेमिति कुहा जाए कि छोट छोट बिंदु जलकणा को नै कि समुद्र सृष्टि हुए। तेणु आमे जति टिके 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 एमिति करी माने निजको संपूर्ण भाव श्रृंखलित करि परिबा आम जेनेरेशन परे तार आर जेनेरेशन परे एमती हेई कि गोटे सुंदर श्रृंखलित राष्ट्र हेई परिबो जहा कि ठाकुरकर एकमात्र इच्छा थिला कि देश इष्ट प्राण होई उठू। तेणु ठाकुर को दीक्षित हिसाब रे आमर ये जो सत्संग अभियान बा मातृ सम्मेलन जो अभियान अच्छी से सबुदिन पाई चालू एवं आमे ठाकुरकर आशीर्वाद ग्रहण करी तांकर उद्देश्य को किभली विश्व दरबार रे प्रतिफलित करि पारु एहाई आशीर्वाद कामना करिबी। एवं विशेष किछि जानिनी कि कोडी जति भूल भाल किछि कहिथिबी मते क्षमा कर देबे। एति कहि मोर वक्तव्य शेष करूछि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। शुभश्री माँ ए सुंदरगढ़ आज जाजन करुथिले से माँ आ कोनोसी किछि भी बाकी रखी नांती जे अन्य माने किछि कहिबे से तांगर स्वल्प समय मध्यरे बहुत किछि कहि जाइछन्ती जेमति कि शिक्षा ठारू आरंभ करी बहुत किछि जिंस वर्तमान चलनी वर्तमान माने आचार व्यवहार सब विषय बहुत किछि कहि जाइछन्ती। एई कथार मोर गोटे ठाकुरंकर मोर गोटे छुटिया कथाटिए मन पड़ला। जने थरे जने भक्त से कौन कले ठाकुर पाखरे आसिकी कहले ठाकुर आपण तो कहछन्ती स्वामी प्रति टाण जेमन सेई छले हुए कृति तेमन ताहले गांधानी को भलिया
जड़े प्रतिपरायणा नारी सी केमती एमती 100 पुओ जन्म कले ए भलिया व्यभिचारी आ ए भलिया माने अहंकारी जोटा कि गोटे सुंदर आउ सत्य परिचालित राज्य टाକୁ छारखार करदेले 100 पुओ सेति बेले ठाकुर कहचंती तो किए कहला जे माने गांधारी होचंती सती प्रकृतरे गांधारी आदौ सती नथिले कि पतिपरायणा नथिले सी प्रतिशोध परायणा थिले जहाँकि स्वामी प्रति घृणा भाव थिला जे कि मुख दर्शन करिवे नाही बोली से आखिरे अंध पुटुली बांधे थिले से जदि प्रकृत रे सती हेई थांते ताहले स्वामींकर आखि होई से तांको परिचालित करथांते एवं जो छुआ माने धृतराष्ट्रंकर अंध भल पाइबा को नेइगिरी से अंध भाव परिचालित है कि दुराचारी हे जाइथिले से माने से भलिया हेई पार न थांते तेनु प्रकृत रे माने गोटे भल पाइबा आउ स्वामी प्रति प्राण ताकू ठाकुर माने भिन्न भाव रे सेवा आउ कर्तव्य परायणता भाव रे देइछंती ना से स्वामी अंध थिले मु मध्य ठीक से भलिया अंध हे जीवी ना स्वामी रो जने परिपूरक हे थिया बा ही प्रकृत नारी रो धर्म बस मु कहबा माध्यम रे भाव प्रवण हे बहुत किछि कहि देली वर्तमान हमर देवघर रु माधुरी माँ तांकर जाजन परिवेशन करिवे माधुरी माँ हाँ, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु माधुरी माँ आउ आपण भजन परिवेशन करंतु ए सॉरी जाजन परिवेशन करंतु। हाँ, जय गुरु सभी को। आज प्रीतिलता माँ ने मुझे यहाँ पे कुछ बोलने के लिए बोले हैं तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है। लेकिन पहले मैं 2 बातें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। एक बात तो सबसे पहली जो बात है वो मैं उतना अच्छा से मुझे इतना नॉलेज है नहीं, फिर भी कोशिश करूंगी क्योंकि ठाकुर जी के बारे में तो कोई भी बोल सकते हैं। जो हम लोग ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं तो ठाकुर जी के बारे में बोल सकता है। दूसरी बात जो है मुझे इतना अच्छा से हिंदी बोलना आता नहीं है ये बात एक है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मैं प्रीतिलता माँ ने मुझे बोला कि हिंदी में बोलना है तो मैं कोशिश करूंगी बोलने का कि मैं बोल पाऊँ। मैं पहले बहुत मुझे डर लग रहा था जब प्रीतिलता माँ ने मुझे बोला कि तुम्हें हिंदी में बोलना है तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूं। एक तो मुझे आता नहीं है इतना अच्छे से बोलना और फिर दूसरा हिंदी में बोलना है तो डर लग रहा था। फिर मुझे एक बात याद आया कि एक बार हुआ क्या, बाबा दादा के सामने पूजनीय बाबा दादा के सामने कुछ बातचीत चल रहा था तो दादा बोले ऐसे ही बात करते करते ऐसे ही बोले कि सब भाषा सीखे रखा उचित। हमारे सब भाषा मतलब हम लोगों को सब भाषा सीख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कहीं पे भी जाए और वहाँ पे हम लोग का मतलब जो मातृभाषा है वो अगर वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता है तो क्या हम ठाकुर जी का मतलब हम जिसके साथ मिल रहे हैं वहाँ पे जाके तो वहाँ पे जाके क्या हम ठाकुर जी का बात बोलने से वंचित रह जाएंगे? ये कैसे होगा? ये तो होना नहीं चाहिए। तो इसलिए तब मतलब तभी से मुझे रियलाइज मैं कर कि नहीं मतलब कम से कम हिंदी भाषा सीख लेना चाहिए। तो तभी से मैं थोड़ा बहुत सीखा बहुत भाषा थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। जैसे कि मेरे अभी शुभश्री माँ बोल रहे थे ओडिया में तो सब कुछ तो समझ में नहीं आया, फिर भी कुछ कुछ बातें समझ में आया। तो इसीलिए तो ये सब हम लोग को सभी को भाषा कम से कम हिंदी भाषा सीख लेना चाहिए क्योंकि हम लोग अब कहीं पे भी जाए और वहाँ पे ठाकुर जी का बात बोलने से वंचित न रह जाए। तो यही बात मुझे जब प्रीतिलता माँ ने बोला तब मुझे लगा कि हाँ क्यों डरने की क्या बात है। मतलब ठाकुर जी का भाषा है प्रेम का भाषा। मैं जो भी बोलूंगी
वो सब किसी को समझ में आ ही जाएगा। मतलब वो कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है उनको समझने के लिए, बंगाली या हिंदी या फिर उड़िया कुछ भी नहीं, उनको तो प्रेम से समझा जा सकता है, क्योंकि वो तो हम लोगों को दे के गए हैं प्रेम की भाषा, तो उसी से हम लोग उनको समझते हैं। तो वही सांस लेके मैं थोड़ा बोलने की कोशिश कर रही हूँ, करूंगी आज ठाकुर जी का बात कुछ बोलने का। तो ये जो जाजन है, तो ये जाजन मुझे लगता है कि एक टाइप का जजन, मतलब जजन ही है, खुद को एक्टिव रखना ठाकुर जी के बारे में, मतलब ये बोल के खुद को एक्टिव रखना कि मैं कितना दूर तक समझ मुझे आया है ठाकुर जी का बात या भी कुछ भी। जब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तब टीचर बोलते थे कि तुम एक चीज ऐसे ऐसे करके समझो कि दूसरे को समझा सको। तो मतलब हम ठाकुर जी के बारे में क्या समझे हैं, तो वही मतलब बोलना है, तो वो खुद को ही एक टाइप का मतलब प्रैक्टिस करना है कि मैं क्या कितना दूर तक समझ पाई हूँ, वही मुझे बोलना है। तो मैं उसी से बोलूंगी आज। अगर मैं मतलब ये खुद को एक्टिव, सक्रियता एक्टिव रखने के लिए मैं आज बोल रही हूँ। अगर यहाँ से किसी को कुछ लेना है, अच्छा लगे तो वो लेंगे, और जो उनका अच्छा नहीं लगे वो नहीं ले, जो भी हो। तो बात यह है कि मैं जब कॉलेज में पहली बार गई, मतलब जाती थी, तब मुझे बहुत कोई फ्रेंड्स पूछते थे कि तुम जो ये ठाकुर जी को लेके, मतलब ये जो दीक्षा लिए हो तुम लोग, ऐसे ऐसे ये क्यों लेते हो, मतलब क्या होता है इससे, मतलब तुम लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनका दीक्षा लेने से तुम लोग अच्छे से हो, या फिर तुम जो उनको पुरुषोत्तम बोलते हो क्यों बोलते हो, तुम लोग को मतलब पता कैसे चल रहा है कि वही पुरुषोत्तम है। तब आंसर नहीं दे पाती थी पहले पहले कि क्या पूछ रहे हैं, मतलब क्यों नहीं दे पाती थी कि बचपन से मैं जहाँ मतलब यहाँ पे मतलब बड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि बचपन से माँ बाबा सिखाए हैं कि कुछ भी हो वो ठाकुर जी के लिए है। मेरा जन्मदिन हो, ठाकुर जी को जाके प्रणाम करो, मेरा परीक्षा देने जाना हो तो वो ठाकुर जी को प्रणाम करके मैं जाऊंगी, या फिर मेरे यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ है, वहां पे कोई फल या फूल हो, कोई पहले ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। ये क्यों करते हैं ये सवाल का, ये मतलब कभी मैंने पूछा भी नहीं। मतलब हम लोग, मुझे लगता है यहाँ पे जो भी है, जो एकदम बचपन से ठाकुर जी को, मतलब ठाकुर जी के बारे में सुन रहा है, ये क्यों वाला प्रश्न कभी आया ही नहीं कि क्यों ठाकुर जी को लेके चलना है हम लोगों को। तो मैं भी ये बात मतलब तभी मैं इतना नहीं बोल पाती थी कि क्यों, तो मैं बोलती थी कि हाँ वो हम लोग का गुरु है, तो उनको लेके चलना है, तो ये सब बोलती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सही जवाब हो नहीं रहा है, ये उत्तर से मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हूँ कि क्या है, मतलब गुरु है तो गुरु तो कोई भी किसी को भी गुरु मान के चल सकता है, तो मतलब क्या है। तब मुझे एक बुक में, मतलब कहीं पे किताब में एक जगह एक ठाकुर जी का कहानी, मतलब ठाकुर जी खुद एक कहानी बोले हैं, वो मैंने पढ़ा। तो मुझे लगा कि ये मेरा पर्सनल एक मतलब व्यू है कि मुझे लगा कि ये एक पुरुषोत्तम क्यों है, वो इनका इसका आंसर ये हो सकता है। तो मैंने पढ़ा कि ठाकुर जी एक अकबर और बीरबल जो थे उसका एक कहानी बता रहे हैं, सब कोई बैठे हैं ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी वो कहानी बोल रहे हैं। क्या कहानी है, तो अकबर के पास तो बीरबल रहता था। तो वो मतलब सब कुछ, अगर अकबर का कोई प्रॉब्लम होता था, कुछ भी होता था, कोई भी समस्या का समाधान या फिर कुछ भी जानना है, तो वो बीरबल को पूछते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहां पे और भी सारे थे, बीरबल को छोड़ के भी बहुत सारे पंडित लोग वहां पे रहते थे, तो वो सब आके राजा को पूछा, अकबर को पूछा कि महाराजा महाराज ये जो आप हमेशा बीरबल को ही इतना मतलब सब कुछ जानने के लिए आप बीरबल का इतना प्रशंसा क्यों करते हैं कि वही सब कुछ है, आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीरबल के पास ही क्यों जाते हैं। तो महाराज बोले क्योंकि वो हमेशा मेरा उत्तर का प्रश्न का सही उत्तर देते हैं, मैं मुझे सब प्रॉब्लम से बाहर मतलब निकालते हैं। तो बोले कि हम लोग भी तो पंडित है, तो हम लोगों को आप क्यों नहीं मतलब अपने पास रखते हैं, अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मतलब करवाने के लिए क्यों नहीं रखते। तो अकबर बोले ठीक है,
तो एक काम करते हैं, बीरबल को मैं छुट्टी देता हूँ और आप लोग बीरबल के जगह पे बैठिए। 3 आदमी थे वो, बीरबल के जगह पे बैठिए। तो वो बहुत खुश हुए वो लोग, और बीरबल को राजा ने बोला कि बीरबल तुम घर जाओ, तुम्हारा अभी छुट्टी है, कभी अगर जरूरत होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो बीरबल बोले जो आज्ञा महाराज, बोल के वो चले गए। अभी कुछ दिन बीत गया, तब महाराज के पास वो 3 आदमी बैठते हैं, बीरबल जहाँ मतलब जहाँ पे थे वो 3 आदमी थे वहां पे राजा के पास। तो अभी एक प्रजा आए राजा के पास। प्रजा आके राजा को पूछते हैं कि महाराज मेरा 3 प्रश्न है, मैं बहुत जगह पे जाके ये 3 प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की, मुझे कहीं पे कोई बहुत टाइप का उत्तर दिया, मैं सेटिस्फाई नहीं हुई उत्तर से। मुझे मुझे मैं तो जानता हूँ कि राजा के पास अगर कोई भी प्रश्न लेके जाए, राजा उसका सही जवाब हमेशा देता है, तो आप मेरा ये प्रश्न का समाधान कर दीजिए। तब अकबर बोलते हैं बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब वो प्रजा उनको 3 प्रश्न किए। तब ये 3 प्रश्न सुन के राजा का तो दिमाग एकदम खराब हो गया, मतलब एकदम बोलते हैं उत्तर नहीं मिल रहा है उनको। फिर वो जाके उनको पूछा, वो जो 3 थे वहां पे पंडित, वो उनको पूछा और बोल रहे कि आप लोग इनका उत्तर बताइए। वो 3 ये प्रश्न सुन के वो तीनों को भी मतलब एकदम मतलब हतचकित हो गया कि क्या इसका उत्तर उन लोगों को भी नहीं मिल रहा है। तब राजा ने बोला उन लोगों को कि अगर आज रात के अंदर आप ये तीनों प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप लोग को फांसी में चढ़ाया जाएगा। तो तभी वो तीनों बहुत डर गए। तो फिर वो क्या कोई उपाय मिल नहीं रहा है, तो फिर वो जाके बीरबल के पास गए। बीरबल के पास जाके बोलता है कि बीरबल हम लोग से गलती हो गया, हम लोग ही महाराज को बोले थे कि तुमको हटाने के लिए अपनी जगह पर, हमको बैठाने के लिए, तुम चलो मेरे साथ, हम लोग को माफ कर दो। ये 3 प्रश्न आया हुआ है, हम लोग कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और अगर नहीं देंगे तो महाराज हम लोग को फांसी में चढ़ाएंगे। तो बीरबल बोले ठीक है तुम आप लोग शांत होइए, मैं जाता हूँ आप लोग के साथ। तो फिर वो बीरबल के साथ आए। तभी महाराज बीरबल को देखा, देख के पूछा कि बीरबल क्या हुआ तुम यहाँ पे। तो बीरबल बोलता हाँ महाराज मैंने ऐसे सुना कि आपके पास कोई प्रश्न आया है। तो तब महाराज बोल रहा है कि हाँ प्रश्न आया है, मैं इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो बोले बताइए महाराज क्या प्रश्न है। अभी पहला प्रश्न महाराज उनको बोले, बीरबल को बोले हाँ, पहला प्रश्न ये था कि ईश्वर क्या नहीं कर पाते हैं। पहला प्रश्न उसका ये था कि ईश्वर क्या नहीं कर पाते हैं। बोले बीरबल ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, हम लोग तो ये सब कोई जानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कुछ कर पाते हैं। ये कैसा प्रश्न है कि ईश्वर क्या नहीं कर पाते हैं, तुमको इसका उत्तर पता है क्या। तो बीरबल बोलते हैं हाँ महाराज पता है, ईश्वर एक चीज कर नहीं पाते हैं। तो महाराज पूछते क्या। तो बीरबल बोले ईश्वर अपने साम्राज्य से किसी को दूर नहीं जा दे सकते, मतलब अपने साम्राज्य से किसी को बाहर नहीं निकलने दे पाते हैं। तो ये मतलब ये पहला उत्तर था। तो ये सुन के बहुत खुश हुआ। तो ये उत्तर से मुझे ठाकुर जी का जो एक भावबाणी में जो है कि तुम्हें যতই মানে তুমি গো হত্যাই করো না কেন, তুমি স্ত্রী হত্যাই করো না কেন, তুমি ব্রহ্ম হত্যাই করো না কেন, তুমি মানে জগতের যত বড় ঘৃণ্য কাজ করো না কেন, তুমি আমার কাছে আসো, চলে আসো, ভয় নাই। ये भावबाणी में ठाकुर जी बोले हैं। तो मुझे लगा कि एकमात्र ये तो वही बोल सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि मतलब एक चींटी हम लोग के अगर आके आता है तो हम लोग उसको मारना चाहते हैं, या फिर कोई हम लोग को अगर कुछ खराब बात बोलता है तो हम लोग उसको उल्टा जाके खराब बात बोलने जाते हैं। तो ये कौन बोल सकते हैं, एक ईश्वर भगवान ही तो बोल सकते हैं कि तुम जितना भी बड़ा बुरा काम कर लो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ले लूंगा, मतलब मेरे पास आओ। तो ये था पहला प्रश्न। बहुत खुश हुए महाराज। फिर बीरबल ने पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो फिर महाराज बोलते हैं ईश्वर क्या देख नहीं पाते हैं। तो बीरबल बोलते हैं हाँ महाराज, ईश्वर एक जैसा कोई दूसरा चीज नहीं देख पाते, अर्थात मतलब एक
चीज है उसके जैसा कोई दूसरा चीज नहीं देख पाते हैं, मतलब एक एक ही है और एक ही है। तो ये बात से मुझे लगा कि ठाकुर जी का जो बचपन का जो कहानी था, जो ठाकुर जी स्कूल गए और वहाँ पे जो टीचर थे तो वो बोलते जा रहे हैं कि एक और एक दो होता है, ठाकुर जी मतलब ठाकुर जी को ये पता नहीं चल रहा कि एक और एक दो कैसे हो सकता है। सभी अलग अलग है। हमारे बाल का दो बाल एक नहीं है, हम दो पेड़ का दो पत्ता एक नहीं है, सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ का वैशिष्ट्य अलग अलग है। हम अलग है, हमारे मतलब जो भी है वो उनका वैशिष्ट्य अलग है। तो ये है, तो ये बात से मुझे दूसरा उत्तर मिल गया। अब तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये था कि ईश्वर की इच्छा क्या है। तब बीरबल ने बोला कि ईश्वर महाराज आपका जो इच्छा है वही ईश्वर का इच्छा है, अर्थात ईश्वर का जो इच्छा है वही आपका इच्छा है। कैसे? जैसे कि तब बीरबल बोलता है कि देखिए अभी आप ये तीनों को अगर चाहते तो आप फांसी दे सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इनको माफ भी कर सकते हैं। मतलब ये तीन जो है पंडित, ये सबको माफ भी कर सकते हैं। तो आप ही का इच्छा है, ठाकुर जी का इच्छा, क्योंकि हम लोग अपने सब कर्म में हैं। हम ठाकुर जी का जो इच्छा है वो हम लोगों को कर्म से करना है। कर्म मतलब हम लोग अपने कर्म से उनका इच्छा पूरा करेंगे, तभी तो मतलब हम लोग का मतलब जो है, जो ठाकुर जी बोल के गए हैं वही तो हमको करना है। यही तो ठाकुर जी चाहते हैं, वो और कुछ नहीं। मतलब एक जगह हम पढ़ रहे थे कि ठाकुर जी बोले कि नहीं, मतलब ठाकुर जी जब हिमायतपुर में थे तब ठाकुर जी को पूछा गया कि ठाकुर আমরা আপনি যে এত কিছু বলছেন, मतलब आप जो इतना कुछ बोल के जा रहे हैं तो ये तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इससे तो आपका मतलब कष्ट तो चिरोदिन मतलब हमेशा के लिए रह जाएगा ये कष्ट। तब ঠাকুর জি ने बोले कि আমি বিশ্বাস করি আমি যেমন যেমন ইচ্ছা করি ঠিক তেমনি তেমনি হতে পারে। ঠাকুর জি ने बोले আমি বিশ্বাস করি আমি যেমন যেমন ইচ্ছা করি ঠিক তেমনি তেমনি হতে পারে, অবশ্য আপনারা যদি আমার ইচ্ছাটাকে আপনাদের ইচ্ছা করে নেন। ঠাকুর জি ये भी बोले कि অবশ্য আপনারা যদি আপনাদের আমার ইচ্ছাটাকে আপনাদের ইচ্ছা করে নেন, अर्थात जो ठाकुर जी का इच्छा है, ठाकुर जी बोले कि हम विश्वास करते हैं जो हमको जो जो इच्छा है वही वही हो सकता है, लेकिन मेरी इच्छा को अगर आप लोग अपनी इच्छा में रूपांतरित करेंगे तभी ये हो सकता है। तो ये हम लोगों को करना है कि ठाकुर जी का बात जो ठाकुर जी बोल के गए हैं वो अपने कर्म में करना है, मतलब करते जाना है, लेकिन वो सिर्फ निस्वार्थ भाव से करना है। हम मेरा कोई स्वार्थ वहां पे नहीं रहेगा, सिर्फ इष्ट स्वार्थ रहेगा, सिर्फ इष्ट स्वार्थ रहेगा। फिर ठाकुर जी क्या बोलते हैं, আমার ইচ্ছা মতো কাজ করবেন, তার মধ্যে আপনাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলি, স্বার্থ, প্রয়োজন, প্রবৃত্তি ও খেয়ালগুলি स्वतंत्रভাবে চালাতে থাকবেন, তাতে কিন্তু হবে না। और मतलब ये बोलते हैं कि मेरे इच्छा से आप काम करेंगे और साथ में अपना व्यक्तिगत इच्छा, प्रवृत्ति, स्वार्थ, प्रयोजन, ये सब स्वतंत्र भाव से मतलब करते जाएंगे, ये नहीं होगा। वो निस्वार्थ भाव से करना है। फिर ठाकुर जी बोलते हैं আপনাদের ভিতর যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে এবং সবগুলি সামগ্রিকভাবে আমার ইচ্ছার সঙ্গে संगतिशील হয়ে ওঠা চাই। अर्थात मतलब ठाकुर जी बोलते हैं जो आप लोगों के अंदर जो है वो अलग अलग से, जो मतलब मेरा जो कुछ भी इच्छा है, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो मैं जो पढ़ रही हूँ, ये सब अलग अलग रूप से या फिर सब कुछ एक साथ में ठाकुर जी के ठाकुरमुखी होना चाहिए। मैं जो बिजनेस कर रही हूँ वो भी ठाकुरमुखी होना चाहिए, मैं जो पढ़ रही हूँ वो भी ठाकुरमुखी होना चाहिए, और ये सब एक साथ में भी ठाकुरमुखी होना चाहिए। यही ठाकुर चाहते हैं। फिर बोलते हैं তোমার রক্তের একটা কণা, শরীরের একটা সেল বা ইচ্ছার একটা আঁশও যদি থাকে যা আমার ইচ্ছা পরিপূরণে সক্রিয়ভাবে আগ্রহশীল হয়ে ওঠেনি, তাই একদিন মস্ত বড় বাধার সৃষ্টি করে তুলতে পারে। हम ठाकुर जी का जो इच्छा है वो अगर हम लोग करते हैं, लेकिन वो इच्छा मतलब जो है, मतलब मेरा जो एक ब्लड का एक कणा भी है या फिर शरीर का एक सेल है या फिर इच्छा का जो एक आंस भी है, जो वो अगर ठाकुर जी का इच्छा पूर्ण के लिए नहीं होगा तो वो एक दिन बहुत बड़ा बाधा सृष्टि कर सकता है, बहुत बड़ा। और फिर ठाकुर जी क्या बोलते हैं, এই বাধার অপসারণ হয়ে গেছে যার মধ্যে তার অসাধ্য কাণ্ড নেই।
এমনতর যে সে নিরহংকার হয়ে যন্ত্রস্বরূপ কাজ করে যেতে পারে, परम पिता ताके नित्य शक्ति जोगान। फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर ये बाधा जिसमें अपसरण हो चुका है वो निरहंकार होके जंत्र स्वरूप काम करते जाता है और परम पिता उनको हमेशा शक्ति जुगाते हैं। कितना बड़ा अभय बानी ठाकुर जी बोल के गए हैं, कितना बड़ा, मतलब ये मतलब ठाकुर जी हम लोग को शक्ति जुगाएंगे तो उनका क्या, उनका थोड़ी कुछ होगा, वो हम लोगों के लिए तो करते गए हैं, सिर्फ हम लोगों के लिए सब कुछ करते गए हैं, कुछ नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हम लोगों के लिए करते गए हैं। तो अगर वो इतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं तो हम लोग अगर उसमें उसके बदले में उनको कुछ नहीं देंगे तो फिर मतलब कैसे होगा। करना है उनके लिए भी, हमको मुझे करना है उनके लिए, मेरा जन्म हुआ है उनके लिए। कोई तो जन्म तो ऐसे ऐसे हो नहीं सकते, कोई काम, कोई पार्टिकुलर काम के लिए जन्म होता है सभी का, तो वो मुझे करना है, वो काम ढूंढना है, ये काम क्या है ये ढूंढने के लिए मुझे ठाकुर जी को पकड़ना है और ठाकुर जी को पकड़ के उनके इच्छा के स्वरूप मुझे काम करते जाना है। बाकी तो वो देख लेंगे, मैं कौन हूँ, कोई नहीं, ये मैं कौन हूँ ये मुझे पता ही नहीं, सब कुछ उनकी इच्छा से होगा। तो मतलब ये है बात। और मैं एक दो घटना बोलती हूँ कि जो मतलब छोटा, उस दिन मैं टेक्सास में एक सत्संग में जुड़ी हुई थी, तो वहां पे राधा कृष्ण था नेदरलैंड्स के, वो दो घटना बोली, मुझे इतना प्रेरणा दी है कि मैं वो मतलब बोलूंगी आज यहाँ पे, मतलब मुझे बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने का मन कर रहा है। एक बार क्या हुआ, जो ठाकुर जी का मतलब सेंटिनरी का उत्सव सेलिब्रेशन होगा, इसके पहले कुछ बहुत सारा, क्योंकि तभी का एक युग था कि उतना सारा जाग जमक करके सब करना होता, तो सभी अर्घ कलेक्शन करना पड़ता था। तो एक बार आसाम में कामिनी डेका एक घर में गए और जाके वो एक दादा, वहाँ पे एक दादा, उनका वाइफ और उनका बेटा रहते थे, तो वहाँ पे जाके कामिनी दा बोले कि ऐसा ठाकुर जी का बर्थ सेलिब्रेशन होगा, तो फिर आप लोग अगर कुछ दया करके कुछ अर्घ दे तो हम लोग को तो साथ, मतलब वो दादा लोग का इतना सिचुएशन अच्छा नहीं था, फिर भी वो दादा बोले कि हाँ मैं ठाकुर जी के लिए 5,000 रुपए दूंगा। तभी के जमाने में 5,000 रुपए बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, आप सभी को पता होगा ये। 5,000 रुपए दूंगा, तो कामिना बहुत खुश हुए, बोलते हैं मुझे मतलब कुछ दिन समय दीजिए, 1 सप्ताह या फिर 15 दिन, मैं जुगाड़ करके आपको दूंगा। फिर वो बोल के कामिना निकल रहे, ऐसे समय उनका जो वाइफ है वो भी बोले कि मैं भी दूंगी 5,000 रुपए ठाकुर जी के लिए। तब कामिना पूछते आप क्यों देंगे, आपका पति तो दे रहे हैं। तो फिर वो बोलते नहीं, ये मेरा पति मेरे ठाकुर के लिए दे रहे, उनका ठाकुर के लिए दे रहे, मैं अपने ठाकुर के लिए दूंगी। फिर उनका बेटा भी बोलता है उन लोगों को देख के कि मैं भी 5,000 रुपए दूंगा ठाकुर जी के लिए। तो ये बात, ये इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही कि देखिए ठाकुर जी सबके अपने अपने हैं, तो सबको मतलब देना है। ये बहुत प्रेरणा मूलक एक घटना है कि वो सभी दिए, फिर क्या हुआ, वो लोग आ नहीं पाए ठाकुर जी का बर्थ सेलिब्रेशन, वो अर्घ तो दे दिए लेकिन वो आ नहीं पाए। वो कामिनीदा को बोला कि देखिए हम लोग अभी जाने का सिचुएशन हम लोग के पास है नहीं कि हम लोग जाए वहां पे बर्थ सेलिब्रेशन एंजॉय करें, लेकिन आप देख के आइए, हम लोगों के आंख से आके हम लोग को ये घटना बताइएगा कि कैसे कैसे हुआ है। निस्वार्थ भाव से वो लोग ठाकुर जी के लिए किए हैं, तो वो अगर कर पाएंगे तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। जो भी हो, शायद मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं और ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। तो यही है। तो और जो मैं लास्ट एक बात बोल के खत्म करना चाहती हूँ कि आचार्य देव दादा एक बार शायद बहुत दिन पहले का बात है ये, तो वो बोले कि एक ऋतिक सम्मेलन में शायद बोले थे कि ये मैच, ये जो रोज उत्सव, मतलब जो उत्सव होता है, इतना सारा सत्संग होता है, इतना सारा दीक्षा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि रोज उत्सव हो, एक दिन ऐसा है कि रोज उत्सव हो, रोज सत्संग हो, एक आनंद, मतलब वो बोले थे। और देखिए आज इतना दिन बाद रोज सत्संग कर रहे हैं हम लोग। पैंडेमिक सिचुएशन में सबका जो हाल है, उस सिचुएशन में बैठ के हम लोग को कोई डिप्रेशन, सब कोई बोलता है, मेरा जो फ्रेंड्स है डिप्रेशन हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई फीलिंग हुआ ही नहीं। ये जो इतना बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन चला गया, कोई फीलिंग हुआ ही नहीं। रोज सत्संग करते जा रहे हैं, यही तो ठाकुर जी चाहते हैं, ये तो आचार्य देव चाहते हैं। तो अगर हम लोग उनके वो जो बोल रहे हैं उनके मतलब बात में हम लोग चलते हैं,
तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है। तो मैं ये बोल के यहाँ पे खत्म करती हूँ। आप लोग यहाँ पे जो भी है जो नहीं है सबके लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करती हूँ। सब कोई अच्छा रहिए और ठाकुर जी को लेके सब कोई को चलना है। बस यही एक हम लोग का एजेंडा है कि हम लोग चलेंगे। तो यही बोल के मैं अपना बात खत्म करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। और माधुरी मामा बहुत 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 धन्यवाद। आउ बहुत सुंदर भाबरे हिंदी भाषा भल भाबरे न जानिले मध्य खूब सुंदर भाबरे कहले। आ भाषाटा किछि प्रकृत रे माने कोनोसी कम्युनिकेशन नुहे जे जनकर भावर आदान प्रदान पाई की आदान प्रदान पाई भावटा बहुत जरूरी। से भावधारा रे एते सुंदर भाबरे कहले से आउ थरे धन्यवाद। आउ समय तो हे गलानी। आउ अल्प समय पर प्रार्थना टाइम मध्य हे जीवो। रुचिदा माँ तुमे ध्वनि दियो। आउ आमर मातृ सम्मेलनी शेष करवा ध्वनि दे सारला परे। रुचिदा माँ। आज्ञा जय गुरु। हाँ जय गुरु। हाँ ध्वनि दियो। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बोरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बोरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बोरदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। मातृ सम्मिलनी की जय। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे आर्य पितॄन्। वंदे आद्य पितॄन्। वंदे मातृवर्गान्। वंदेऽहं कृष्णदेवतान्। वंदे अहं कृष्णदेवतं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु समस्त को जय गुरु। आज सुंदर भाव मातृ सम्मेलन है। आहरी अधिक समय थिले आमे सब माँ मानकर सुंदर भाव जाजन शुणी था। आज